ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଇ ରଙ୍ଗରତନ ମାଳି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆଉ ଆରାଧନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ହୋଇ ବସିବାର ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଆମମାନଙ୍କର ରେଭରେଣ୍ଡ କର ସାର୍ ପୁଣି ମତେ ୱେଲକମ୍ କରିଥିବା ଆମମାନଙ୍କର ସିଷ୍ଟର ଏବଂ ଯେତେ ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସାର୍ ମୋ ସ୍ୱର ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ଶୁଭୁଛି ସାର୍। ମୋର ବୋଧେ ମ୍ୟୁଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଶୁଣି ପାରିଲେ କି? ହଁ ଶୁଣି। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଏକତ୍ର ହେଇଛୁ, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଟେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ପବିତ୍ର ଦୂତ ସାଧୁ ମାନେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କ ସେବା ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆରାଧନାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଲ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ସେବା ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡି ହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ନେଟୱାର୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ସଲ୍ଭ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଜିର ଆରାଧନା, ଗୀତ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ। ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ, ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ପରିଚାଳିକା ତୁମ ପ୍ରିୟ ଦାସୀଙ୍କୁ, ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ତୁମ ପ୍ରିୟ ଦାସ ଦାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ମଙ୍ଗଳ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଯେପରି ତୁମରି ସେବକ ହେଇ ତୁମ ସେବାରେ ଆଗକୁ ବଢିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଦୟା କର। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଏଇ ପବିତ୍ର ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ଆଣୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆମେ ଯେପରି ତୁମର ଦୁଃଖ ଭୋଗକୁ ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ସମାପ୍ତି ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଇ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆମଙ୍କର ରିଅଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ପରିଚାଳକକୁ। ମତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ମତେ 2-3 ଥର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରାପ୍ତ ଉପାସନା ଚାଲିଛି। ତଥାପି ମୁଁ ନିଜେ କହିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ଶନିବାର ଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିବି ବୋଲି। ହୁଏତ କାଲି ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରକୃତରେ ଗୀତ ଗାଇବା। ଆଉ ଗୀତଟି ଗାଉ ଗାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିବୁ। ଚାହାରେ ଚାହାରେ ନର କାଲ ବରି ଚୁଳେ, ଏଇ ଗୀତଟି ଆମେ ଗାଇବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଜାଣୁ। ଏ ଗୀତଟି ଗାଉ ଗାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିବା। କାରଣ ଏ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଚାହାରେ ଚାହାରେ ନର କାଲବରି ଚୁଳେ, ଚାହାରେ ଚାହାରେ ନର କାଲବରି ଚୁଳେ, ମମ କତି লাগি প্রভু, মম কতি লাগি প্রভু, ক্রুশ কাঠে ঝুলে, চাহারে চাহারে নর কালবরি চুলে,
ଚାହାରେ ଚାହାରେ ନର କଣ୍ଟା କଣ୍ଟାର ଲତିକା ଶିରେ ସବୁଛି ମୁକୁଟ ସରି ନିବାରେ ଲଙ୍କା କିସେ ଯୁଗଳ କରି ବିସ୍ତାରି ବିଞ୍ଚିଛି ଦାରୁଣ ପ୍ରେକ ବିନ୍ଦିଛି ଦାରୁଣ ପ୍ରେକ ହୃଦୟ ବିଦାରି ଚାହାରେ ଚାହାରେ ନର কালবরি চূড়ে কালব চাহারে চাহারে নর বিন্দিছি দারুণ প্রেক চরণ যুগলে ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୀତଟି ଗାଇବାକୁ ଯିବା ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ এই ଗୀତଟି ଆମେ ବୋଲିବା। এই ଗୀତଟି ହେଲା କାଲବରୀରେ ଧନ୍ୟ କାଲବରୀରେ ଚଢିଥିଲେ ମୋର ପାଇଁ ଯୀଶୁ କ୍ରିସ୍ତ। କାଲବରୀରେ ଧନ୍ୟ କାଲବରୀରେ ଚଢିଥିଲେ ମୋର ପାଇଁ ଯୀଶୁ କ୍ରିସ୍ତ। এই ଗୀତଟି ଗାଏ। কালবরীরে ধন্য কালবরীরে চড়িছিলে মোর পাই যিশু ক্রুশরে কালবরীরে ধন্য কালবরীরে চড়িছিলে মোর পাই যিশু ক্রুশরে দুঃখ নিন্দা সহিলে ফেরিকি ন কহিলে দুঃখ নিন্দা সহিলে ফেরিকি ন কহিলে বধ যোগ্য মে সতুল্য মুখন পিটাইলে বধ যোগ্য মে সতুল্য মুখন পিটাইলে কালবরীরে ধন্য কালবরীরে চড়িছিলে মোর পাই যিশু ক্রুশরে কেড়ে প্রেম ন কলে নিজকু বলি দেলে কেড়ে প্রেম ন কলে নিজকু বলি দেলে মতে বঞ্চাইণ দারু মৃত্যুকু বরিলে মতে বঞ্চাইণ দারুণ মৃত্যুকু বরিলে কালবরীরে ধন্য কালবরীরে চড়িছিলে মোর পাই
यीशु क्रूसरे केणे उच्च गभीरा आटे से रम्य स्थल केणे उच्च गभीरा आटे से प्रेम स्थल शत्रु लागिडे प्रेम काही अधिकार शत्रु लागिडे प्रेम काही अधिकार कालबारी रे धन्य कालबारी रे चढ़िथिले मोर पाई यीशु क्रूसरे मते देबाकु धन निजे हेले निर्धन मते देबाकु धन निजे हेले निर्धन अनंत जीवन धन काले माते प्रदान अनंत जीवन धन काले माते प्रदान कालबारी रे धन्य कालबारी रे चढ़िथिले मोर पाई यीशु क्रूसरे तप्तर काताधार से अमृत पायर तप्तर काताधार से अमृत पायर झरो अच्छी निरंतर असरंती भंडार झरो अच्छी निरंतर असरंती भंडार कालबारी रे धन्य कालबारी रे चढ़िथिले मोर पाई यीशु क्रूसरे से पतित पावन निय सर्वे शरण से पतित पावन निय सर्वे शरण तुम आम पाई आज देल यीशु जीवन तुम आम पाई जी देल यीशु जीवन कालबारी रे धन्य कालबारी रे चढ़िथिले मोर पाई यीशु क्रूसरे वास्तव में प्रिय प्रभु लोक मैंने प्रभु जीशु ख्रीस्ट से दिन कालबारी क्रूस उपरे चढ़ी बिना दोषरे कौन खुण पाखे नथिला तथापि शत्रु माने क्रूसरे टंगई अमान निमंते से क्रूसरे झुलिले अपना पवित्र रक्त को से ढाली देले धन्य से परमेश्वर को पुत्र प्रभु जीशु जे कि स्वर्ग रे थाए अमान को प्रेम करते आसतो आम आ गोटे गीत गाइबा आ गीत गा गा प्रत्येक निज को प्रभु को पाद तले समर्पण करिबा।
चाहा चाहा बंधु थरे की कलवरी क्रूस प्रति झटती चाहिदेले रुद दंभ भांगुची तरली जाए चमकी छाती चाहिदेले रुद दंभ भांगुची तरली जाए चमकी छाती निर्दोष निष्पाप बंधु एते कषण सहिल निर्दोष निष्पाप बंधु एते कषण सहिल मुदिनहीन तारण कारण निष्ठुर क्रूसे जाउछि प्राण मुदिनहीन तारण कारण निष्ठुर क्रूसे जाउछि प्राण कंटा मुकुटर घाते की रक्त झरी पड़ुछि छाती की कंटा मुकुटर घाते की रक्त झरी पड़ुछि छाती की वर्षा घाते चक्षु रक्त झरिकी चिंता उछि नीरसमहिकी वर्षा घाते चक्षु रक्त झरिकी चिंता उछि नीरसमहिकी हस्तपादे कंटा मारण ओई से क्रूस धन रे मन हस्तपादे कंटा मारण होई से क्रूस धन रे मन न कोई काहाकु कटु वचन बिकले अंगुल छाड़िले प्राण न कही काको कटु वचन बिकले अंगु छाड़िले प्राण मोर लगाए बापाई की बंधु एते कषण सहिकी मोर लगाए बापाई की बंधु एते कषण सहिकी कलमर पाई प्रेम जाहाकी कालवारी क्रूस पर्वत साखी कलमर पाई प्रेम जाहाकी कालवारी क्रूस पर्वत साखी
चाह चाह बंधु थरे से काल्वरी क्रूस प्रति झटते चाहिदेले रुदु दम्भ भांगुछि तरले जाए चमकी छाती चाहिदेले रुदु दम्भ भांगुछि तरले जाए चमकी छाती। वास्तव में प्रिय प्रभु लोक मैंने जो भयंकर କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାହା ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଅନୁଭବ କଲେ ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଆପଣାର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୀତଟି ଗାଇଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମାପ୍ତ କରୁ। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯେତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନ୍ଧକୁ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଥିଲେ, କୁଷ୍ଠିକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଲାଜାରଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସେଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶର ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଥିବା ଛୋଟ ଗୀତଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଅଛି। କରିଥିଲି ଯେଉଁ ଭାଗେ ମୋ ଦିନ କାମିନୀ କନକ କୁମାର ମଣି କୋଳେଥିଲି ଘେନି କାହିଁ ଗଲ ରେ କାହିଁ ଗଲ ରେ ଅଝଟ ସଂସାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଲୁ ରେ କାହିଁ ଗଲ ରେ କାହିଁ ଗଲ ରେ ଅଝଟ ସଂସାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଲୁ ରେ କାନନ ଗରେ ଜଳକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କଲୁ ମାଲିକ ବୋଲିଲେ କାହିଁ ସୁମିଷ୍ଟ ପାଇଲୁ ଧନ ମୋର ରେ ଧନ ମୋର ରେ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିଲୁ ରେ ଧନ ମୋର ରେ ଧନ ମୋର ରେ ଅଭାବ ତୁ ପୂରଣ କରିଲୁ ରେ ବିଧବା ମାଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନ ସହି ନ ପାରିଲୁ ମଲା ପୁଅଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ମାହାତେ ଦେଲୁ ପୁଅ ମୋର ରେ ପୁଅ ମୋର ରେ ଜଗତ ଚକିତ କରି ଦେଲୁ ରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ମିରାକଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡା କରୁଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମା ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ମନରେ ସ୍ମରଣ କରି କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାର ଏଇ ଛୋଟ ଲେଖାଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛି। 10 ଜଣ କୁଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ତୁ ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲୁ ପିତା ମାତା ପରିଜନ ସହ ମିଳାଇଲୁ ଧନ ମୋର ରେ ଧନ ମୋର ରେ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କଲୁ ରେ ଧନ ମୋର ରେ ଧନ ମୋର ରେ
सर्वदा मुक्त करिदेलु रे मार्था मरियमंकर दुख तु बुझिलु चारिदिन लाजारंको पुणी बंचाइलु बाप मोर रे बाप मोर रे तिनी भौणी को मिलाइलु रे धन मोर रे धन मोर रे तिनी भौणी को मिलाइलु रे प्रिय प्रभु से दिन प्रभु जीशु ख्रीष्ट जेते लोक मान को आश्चर्य कर्म करथिले से समस्त मने पके पितांग निकट रे स्मरण करथिबा ई छोट गीतटे म आपन सम्मुख रखिछि प्रिय बंधु माने ए दिन मान के मध्य प्रभु आमान को जो सुजोग दैछन्ति तांग निकटवर्ती निजर समस्त पाप को तांग सम्मुख रे रखी आमने परित्राण प्राप्त होई सर्वदा तांग सेवा करिया पय प्रभु आमान को मनित करथरो प्रभु को धन्यवाद देउछि प्रभु सुंदर समय देथिबार तुम नाम को धन्यवाद देउछि आज रे पवित्र उपासना रे तुम्हें आमान को सहित रे प्रत्येक को पवित्र आत्मार अभिषेक कर तुम निकटवर्ती कर प्रभु आज तुम पवित्र प्रिय दासों का वाक्य हमारे प्रत्येक श्रवण करबो ता हृदय रे संचय करबा को पारबो एतबा दया कर जेते उपस्थित प्रत्येक को तुम आशीर्वाद अनुग्रह करी तुमरो सेवा निमंते आमान को व्यवहार कर गौरव महिमा तुम्हें पाओ त्राणकर्ता प्रभु यीशु का नाम रे ए समस्त निवेदन मागुछ पिता आमेन नमस्कार आज्ञा प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु सुंदर भाबरे अति हृदय स्पर्शी गीत गुड़िक पूरा से गीत सुनला बेले को हृदय पूरा खंड खंड हो गला भलिया लागुथिला एते बहुत बढ़िया गीत गुड़ाक प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु प्रकृत रे से कृष्य जंत्रणा को आपन पूरा गीत माध्यम रे थोई देइछंती आ एते सुंदर गीत प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु आमान को मध्य प्रभु आशीर्वाद करंतु जे एते सुंदर समय आमान को प्रभु आनी पहुंचाई सुंदर सहभागिता देइछंती जो द्वारा कि आमे समस्त विषय प्राप्त होई अछु प्रभु कर गौरव समस्त प्रभु को उद्देश्य रे गोटे करताली देबा धन्यवाद प्रभु को महानाम रो आउ से आराधना रे मध्य आउ भाई रंकर तनमालिया मान को सुंदर भाव रे आगु को अग्रसर कराई छंती सेति पय प्रभु तांको तथा तांको परिवार को तांको मिनिस्ट्री कार्य रे आशीर्वाद करंतु आउ एते बेले हम मानकर सेही अभिलषित समय उपस्थित होईछि आउ माना संग्रह करिवार समय आमाने आउ थरे टिके प्रार्थना करिबा तापरे आमाने वाक्य निकट को जिबा मान को गहन रे रॉबर्ट जाकब सार अछंती आगे नमस्कार ओटिरो जाकब सार नमस्कार जी नमस्कार अह, प्रेज द लॉर्ड आपण आराधना करथिबा भाईଙ୍କ ପାଇଁ आउ वाक्य घेनी आसुथिबा प्रभुଙ୍କ दासଙ୍କ ପାଇଁ प्रार्थना करंतु प्रार्थना करिबा समस्तंको मोर प्रभु ख्रीष्टंकर मधुर नाम रे प्रेज द लॉर्ड एवं नमस्कार जणाए आसंत आमे आगे के प्रार्थना साउंड टिके करिबा दियंतु वॉल्यूम टिके बढ़ांतु प्रेज द लॉर्ड एबे सुनियो छी दीदी हां हां सत्य के प्रेज द लॉर्ड प्रिय प्रभु आमे तुमको धन्यवाद देउछु बापा आज रे प्रातः काल रे तुमे आम मानन को एकाठी करिथिबार आमे तुमरी गौरव करू अछु विशेष करी प्रभु तुमरी दासं को द्वारा आम मानन को जो सुंदर गीत आराधना करी तुमरी परिवेश मध्य को तुमरी उपस्थिति मध्य को हमको नहीं थिबारो धन्यवाद देउछि प्रभु तांको तुमे आश्चर्य भाବରେ व्यवहार करू अछु प्रभु तांकरी कंठ को तांको देइथिबा से पवित्र आत्मांकर उपस्थिति को एवं तांकरी प्रत्येक कार्य क्षेत्र मांडलिक तथा पारिवारिक पुणी तांकरी व्यक्तिगत जीवन को आमे तुमरी चरण तले रखु अछु तुमे प्रचुर भाବରେ आशीर्वाद कर हे सन्याधिपति सदा प्रभु हाँ बापा से जो समस्त गीत गाउथिले प्रभु
आज से समस्त गीत गाई शुणिले प्रभु मोर स्वर्गत अजा को मने पड़े, मोर स्वर्गत आई को मने पड़े, जो माने झालर सिंह रे रही प्रभु ये समस्त गीत गाई आंभ मान को कोଳରେ सुआई प्रभु यही समस्त गीत गाउथिले एवं प्रभु जीशु सेठी द्वारा से माने आंभ मान को छोट बेले ठारू यही परि आम मान को बढ़ई छंती प्रभु आज से समस्त गीत रंग भाई को मुखरु सुनी पुनर्बार से परिवेश कमन को मने पकेबाकु तुमे देई अछ। धन्यवाद जीशु। स्वर्गीय पिता मैं तुम्हारा धन्यवाद करूअछु। एही समय विशेष करी तुम्हारी दासं को प्रार्थना करूअछु। अभिषिक्त दास पालक थियोपिल पाणी को तुम्हारी हस्ତରେ समर्पण करूअछु बापा। वे तो प्रभु तांको निमंते प्रार्थना करिवा पाए मु योग्य नुहे बापा। तांको देइथिबा नम्र गुण, तांको देइथिबा विचक्षण बुद्धि एवं तांको देइथिबा उत्तम पद एवं तांको देइथिबा से पवित्र आत्माଙ୍କର अभिषेक जोग आमे तुमरी गौरव करूअछु प्रभु। तुमे तांको आग को आहुरी व्यवहार कर। जो मंडलीर पालक दायित्व देई अच्छे से तुमे गौरवान्वित हुआ बोली प्रार्थना करूअछि बापा। पुणी विशेष करी निवेदन करूअछि प्रभु आज वाक्य रे तुमे तांको उत्तम भावर व्यवहार कर, आश्चर्य भावर व्यवहार कर एवं आमे समस्त जेपरि परितृप्त हेबे तुमे दया कर प्रभु। तांकरे समस्त गतिरे तुमे सहायक परमेश्वर हुआ। आमे जेते बसी अछु समस्तंकु तुमे स्पर्श कर। आज वाक्य रे आमे जेपरि परितृप्त हेबो आत्मा रे वर्धिष्ण हेबा पाई एक आवश्यक खाद्य आत्मीय खाद्य तुमे जोगाओ बोली प्रार्थना करूअछि। प्रत्येक डिवाइस को तुम हस्ते समर्पण करूअछि। कौनसी नेटवर्क प्रॉब्लम न हो एपरि तुमे आशीर्वाद कर बोली मध्य प्रार्थना करूअछि बापा। आरंभ रु शेष पर्यंत तुमरी हस्ते सब किछि समर्पण करी ए समस्त प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे मागिलो, आमेन। धन्यवाद सार। प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु। सुंदर भाव आपण आराधनाकारी भक्ता प्रार्थना करिसंती। प्रभु आपण सहवर्ती ईश्वर हुंतु। वर्तमान आम माने सही समय उपस्थित अटु आउ प्रभु आम प्रत्येक सहवर्ती ईश्वर अटंती। प्रभु को महानाम धन्यवाद देवा संगे संगे प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे मो रेवरेंड थियोफिल पाणी आज्ञा को अनुरोध करुची, स्वागत करुची। आउ से सम्मुख को आसी आम मान निकट रे आउ से प्रभुंकर मुख निसृत वाक्य को प्रदान करुथिबे। आज्ञा नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। दीदी प्रेज द लॉर्ड। मोर आवाज सुबुछ की? आज्ञा सुबुछ। प्रभुंका महानामर धन्य हेउ। प्रभु आमान को अनुग्रह कले, सुंदर समय देले। आउ प्रथमे मु पीटर भाई को धन्यवाद दिए। से मते मने पकई आउ थरे सुंदर सुजोग से मते देइछंती। एणु मु कर भाई निकट रे मु कृतज्ञ जनाए। तत्संगे संगे आउ विशेष भाव मु धन्यवाद दिए रंक भाई। से अति सुंदर भाव वर्शिप करी आमान को आगे नहीं छंदी। प्रभु तांग मध्य आशीर्वाद करंतु। पुणी आज उपासना को आउ सुना दीदी परिचालना करुछंती। से अति सुंदर भाव से मते आह्वान करिछंती। तांग मध्य मु धन्यवाद दिए। प्रभु तांको तांकर परिवार को आशीर्वाद करंतु। आज अनेक प्रभुंकर मननीत दास दासी माने आउ बड़ बड़ प्रभुंकर दास माने आउ ए डिवाइस रे से माने जोड़ी हिछंती। एणु सेमानक निकट रे मध्य मु कृतज्ञ जनाए। आउ अनेक समय सेमान को देखिले मते टिके भय लागे भी। प्रभु विभिन्न स्थान रे रखी, विभिन्न अनुष्ठान रे रखी प्रभु सेमान को व्यवहार करी आनुछंदी।
आने अनेक दिन धरी ए दुख भोग सप्ताह अनेक प्रभु दास मान ठारू आमने अति सुंदर वाक्य आमने शुणीचु गुरुत्वपूर्ण वाक्य गभीर वाक्य सबू आमने शुणीचु तेबे आज आमने चिंता करिबा आज कौन से जदियो माने थीम दिया जाइनी तथापि आमने चिंता करिबा माथ्यू पुस्तक 27 पर्व 57 रु 60 जाई के पाइले अध्ययन करन माथ्यू बेଳ पुस्तक ଗଡି 27 57 रु 60 ବେଳ ଗଡି ଆସନ୍ତେ ଯୋସେଫ ନାମକ ହାରାମାଥିଆର ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଆସିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପିଲାତଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ମାଗିଲେ। ସେଥିରେ ପିଲାତ ତାହା ଦେବାକୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ। ଯୋସେଫ ଶରୀରଟି ଘେନି ପରିଷ୍କୃତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ରରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଆପଣାର ଯେଉଁ ନୂତନ ସମାଧି ପାହାଡ଼ରେ ଖୋଳିଥିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ତାହା ଥୋଇଲେ। ଆଉ ସମାଧି ଦ୍ୱାରରେ ଖଣ୍ଡିଏ ବଡ଼ ପଥର ଗଡ଼ାଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। प्रभु ये पठित वाक्य उपरे पुणी श्रवण विशेष भाव आशीर्वाद करंतु ए वाक्य मानक पाई नुआ नुहे पुराणा विषय आमने जिते जन स्थान रे जोड़ी आम समस्त नुआ नुहे पुराणा विषय किंतु प्रभु ए वाक्य दे निश्चित भाव आम कथा कहिबे जीशु ख्रीष्टंकर मृत्यु बा तांकर क्रूसारोपण एवं समाधिस्थ विषय आमने आज परि गोटे दिन रे आमने चिंता करि थाउ कि भली भाबरे जीशु को क्रूसविध करागला एवं हारामाथियो जोसेफ निकोदेम केमिति जीशुंकर शरीर को आउ कबर देले ता उपरे आज परि गोटे दिन रे आमने छोटोटी बेलु आमने सुनिकी आसीचु आमने चिंता करि थाउ तेबे मो आरंभ को जीवी आमने जो वाक्य सब आमने शुणी आसीचु से वाक्य रु कहिबा पाई टिके टिके मु चाहे कारण जीशु ख्रीष्टंकर आगमनर उद्देश्य कौन काहे कि प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत को आसीथिले आदम हवा आमने आदि पुस्तक रु आज जदि आरंभ करिबा हुए तो टिके बोर लागिबो लंबा भी हेई पारे आओ पीटर भाई को मु क्षमा मागिबी जदि लंबा हेई जाए तेबे मु कहिबी जे परमेश्वर से दिन जेतबेले मनुष्य को अभिशाप देले नारीर वंशरु बा नारी तो बहुत कष्टरे संतान प्रसव करिवो स्वामी प्रति तुमर वासना रहिबो आउ जेतबेले सर्प को अभिशाप देले सेतबेले प्रभु आउ सर्प को कहउछंती देख नारीर वंशरु जने जन्म ग्रहण करिवे आउ से कौन करिवो तोर मस्तक को चूर्ण करिवो किंतु तू ता गोईठी की आघात करिवो परमेश्वर एदन उद्यान मध्य ही ए माने बलिदानर विधि को से कौन कले स्थापन कले तांकर पुत्र आसीबे शयतानर मस्तक को चूर्ण करिवे आउ किंतु तू ता गोईठी की आघात करिवो तेबे आज शयतानर मस्तक उपरे भी मु कहिबा पाई चाहे आमने चिंता करिबा तेबे इस्राएल लोक माने जेतबेले आउ से माने मिस्र देश रे थिले मु टिके टिके सबु वाक्य रु छुई कि मु कहिबी आउ जेतबेले से माने थिले इस्राएल लोक मानकर क्रंदन प्रभु सुनिले इस्राएल लोक मान को बाहर करी आनिबा पाए प्रभु मूसा को कौन कले मनोनीत कले मूसा फारों निकट को गले आउ 10टी आश्चर्य कर्म कला परे प्रभु इस्राएल लोक मान को गोटे आदेश देले एही मास तुमान निमंते प्रथम मास हेबो आउ एही मासर 10म दिन रे तुमे गोटे मेष शावक को नेबो आउ तुमे 14 दिनर संध्या जाई ताकू बंद करिके रखिबो तुमर संख्या अनुसार परिवार संख्या अनुसार तुमे कौन करिबो आउ मेष को तुमे कौन करिबो अटकल करिबो से मांस तुमे कौन करिबो सेई रात्रि रे ही तुमे भोजन करिबो किंतु ता रक्त नहीं बाजू बंधरे तुमे लगेइबो आउ जे गृह रे रक्तर चिन्ह नथिबो आउ सेई गृहर ज्येष्ठ पुत्र को आमे कौन करिबा संहार करिबा
मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने आमने वाक्य समस्ते भल भाव जानू आउ से दिन ईस्टर माने इस्राएल लोक माने समाने निस्तार पर्वीय बलिदान करथिले अर्थात प्रथम मासर आबि मासर 14 दिनर संध्या समय से माने कौन कले निस्तार पर्वीय बलिदान कले आउ से रक्त नहीं से गृहर बाजुबंधरे लगेले पुणी से मांस को से राति भितरे बा सेही समय से माने भोजन करी समाप्त करिवे प्रभु समान को आदेश देइथिले तुमे कटिबंधन करिवो हस्तरे जष्टि घेनिब एवं तुमे तर तर ही कौन करिवो भोजन करिवो कारण से रात्रि तुमानंग निमंते विशेष रात्रि हेब तेबे वाक्य रे आमने देखिबा को पारुछु आउ इस्राएल लोक माने समाने प्रति वर्ष बा समाने जेतबेले मिस्र ठारू बाहरिले आउ सेही दिन को सेही वर्ष को बा सेही मास को सेही दिन को समाने कौन करुथिले स्मरण करुथिले प्रभु आमानगु दास मिस्रर दासत्व बंधनरु प्रभु आमानगु मुक्त करि अछंदी तेबे वाक्य रे आमने देखिबा को पारुछु जीसु जेतबेले जगत रे जन्म ग्रहण कले आउ जेतबेले जन्म ग्रहण कले से गोटे गुहाळ घरे जन्म ग्रहण कले अनेक समय से गुहाळ घर कथा मते मने पड़े सबु बेले से गुहाळ घर को न गले जीसुंकर बलिदानर कथा मते टिके अपूर्णांग लागे तेबे इस्राएल लोक मान को प्रभु आदेश देइथिले तुमे प्रथम पु पशु को बा प्रथम मेंढा को तुमे कौन करिवो बलिदान करिवो इस्राएल लोक माने निजर पापर प्रायश्चित पाई आ प्रथम पशु को ही समाने कौन करुथिले मेंढा को समाने बलिदान करुथिले याजक पाख को नेउथिले तेबे जीसु जेतेबेले जगत रे जन्म ग्रहण कले आ सेतेबेले माने देखुछु आ मरियम लूक 2 पर्वर 7 पद रे लिखा जाए मरियम से आपणार प्रथम जात संतान प्रसव करी से गुहाळ कुंडरे सुआइले लुगारे गुड़ाई गुहाळ कुंडरे सुआइले कारण बसा घरे तांको पाई स्थान नथिला तेबे जो गुहाळ घरे आउ माने प्रथम पशु मान को जाजक माने रखुथिले हाँ मेषपालक मान को दायित्व दिया जाइथिला से माने चोरेइबे किंतु से गुहाळ हेला एक रेजिस्टर्ड गुहाळ सेई गुहाळरु लोक माने बलिदान करिबा पाए से माने जेरूसलाम को नेउथिले किणुथिले आउ जेरूसलाम को नेउथिले से गुहाळ रे मध्य माने जिहुदी मानकर इतिहास प्रकाश करे से गुहाळ रे मध्य जणे जाजक रहउथिले कारण से माने मेंढा को नै जाजक माने व्यवसाय करूथिले आउ जेतले जणे आउ निज घरु नेउथिले बहुत से मान को हैरान हेबा को पडुथिला से मेष को से माने आउ परीक्षा करुथिले जे तार कोनोसी दाग अछि कि तार गोड़ भांगी छि कि अंध अछि कि कोनोसी दाग अछि कि एथि पय लोक माने कोन करुथिले ना से माने सीधा सड़क बेथलहीम को जाउथिले आउ जो गुहाळ आउ जिहुदी मानकर रेजिस्टर्ड गुहाळ थिला सेही गुहाळरू से माने मेंढा किणी नै कि से माने कोन करुथिले बलिदान करुथिले आउ से मान को गोटे सर्टिफिकेट दिया जाउथिला जे ए मेंढाटी बलिदान पाए योग्य एणु से मान को आउ किछि से मान को करबा को पडु नथिला सीधा सड़क जाजक माने मध्य ताकू कोन करुथिले बलिदान करुथिले एणु जीसु ख्रीष्ट मध्य जेतेबेले जगत रे जन्म ग्रहण कले सेई गुहाळ रे ही जन्म ग्रहण कले से प्रथम जात संतान मरियम प्रथम जात संतान से प्रथम जात संतान को से गुहाळ घरे जन्म ग्रहण कले कारण भविष्यत रे से एक मेष शावक परी समग्र मानव जातिर पापर प्रायश्चित निमंते मृत्युवरण करिवे तेबे आमाने देखुछु जोहन कहिले कौन कहिले एही देख ईश्वरंकर मेष शावक जे जगतर पाप भार बही नहीं जानती मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने आउ जीसु समग्र मानव जातिर पापर प्रायश्चित निमंते बलिदान हेबार आवश्यकता थिला एणु प्रभु इस्राएल लोक मान को गोटे आदेश देइथिले निस्तार पर्वीय बलिदान द्वितीय विवरण 16 अध्याय जदि आमे देखिबा तुमे आबीब मास को मान्य करिवो
ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ମନୋନୀତ କରିବା ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ତୁମେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବୀୟ ବଳିଦାନ କରିବ। ତୁମେ ଏଠି ସେଠି ନିସ୍ତାର ପର୍ବୀୟ ବଳିଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ସେ କଣ କଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଫିଲିପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କଣ ନା ମତେ ଜେରୁସାଲାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମତେ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ମତେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେବେ, ଆଉ ମତେ ବଦ୍ଧ କରିବେ, କ୍ରୁଶରେ ଚଢେଇବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ନ ଘଟୁ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦୂର ହୁଅ ଶୈତାନ, କାରଣ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟ ନ ଭାବି ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟର ବିଷୟ ଭାବୁଅଛ। ସେଇ ସମୟ ଠାରୁ ଯୀଶୁ ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମତେ ଜେରୁସାଲାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ମାନେ ମତେ ବଦ୍ଧ କରିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ରହିଛି। ହୁଏତ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ କାହିଁକି ଏ କଥା ମୁଁ କହିବିନି, କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ମୁଁ କହିବି କାହିଁକି ଯାଜକ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଯାଜକ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ତାର କାରଣ କଣ, ତାର ଅନ୍ତରାଳ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଲୁଚି ରହିଛି ଆମେ କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଉ ହୁଏତ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲାମକୁ ଗଲେ, ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଧ ପିଠି ଉପରେ ବସିକି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଥିଲା ଆବିବ ମାସର 10ମ ଦିନ। ଆବିବ ମାସର 10ମ ଦିନରେ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲାମକୁ ଗୋଟେ ଗଧ ପିଠି ଉପରେ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି। କୋରସ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଘୋଷଣା କଲେ, କଣ ଆଜ୍ଞା ଘୋଷଣା କଲେ ନା ଜେରୁସାଲାମର ପୁନର୍ସ୍ଥାପନ ବିଷୟରେ। ଆଉ କୋରସ ରାଜା ସେ କଣ କଲେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଜେରୁସାଲାମ ପୁନର୍ବାର କଣ କରାଯିବ, ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କହେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ, ପାପର ଶେଷ କରିବାକୁ, ଅଧର୍ମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ। ଦାନିଏଲ 9 ପର୍ବ 23ରୁ 23, 24, 25 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବାକୁ ସେ କଣ କରିବେ, ଆଗମନ କରିବେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ କୋରସ ରାଜା ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯେ ଜେରୁସାଲାମର ପୁନର୍ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପାପର ଶେଷ କରିବାକୁ, ଅଧର୍ମର ଆଉ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ, ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରିବେ, ଆଗମନ କରିବେ। ସେ ହେଲେ କିଏ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତେବେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ 70 ସପ୍ତାହ ଆଉ ନିରୂପଣ କରାଗଲା। ସେଇ 70 ସପ୍ତାହରୁ ଆଉ 69 ସପ୍ତାହକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣିବା 483 ବର୍ଷ। କୋରସ ରାଜା ଯୋଉ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ସେ ଦେଲେ ଜେରୁସାଲାମର ପୁନର୍ସ୍ଥାପନ ବିଷୟରେ, 483 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଆବିବ ମାସର 10ମ ଦିନ ପଡିଲା। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଯୀଶୁ ଆଉ ଜେରୁସାଲାମକୁ ଗୋଟେ ଗଧ ପିଠି ଉପରେ ବସି ଯାତ୍ରା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଆମେ ଜାଣୁ ତୁମେ 10ମ ଦିନରେ ଗୋଟେ ମେଷ ଶାବକକୁ ତୁମେ ନେବ, ଆଉ 14 ଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିବ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲାମକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ପରେ 12 ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବେଥନିଆକୁ ଗଲେ, ଆଉ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲେ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ବେଥନିଆରୁ ଜେରୁସାଲାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଥ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଧିତ ହେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଫଳ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ସେ ଗଛକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ମନ୍ଦିର ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ଦିର ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ମାନେ ଆଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କଲେ। କାରଣ
ଯାଜକ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ को से कौन कले ओलोटाई पकाइले मंदिर मध्यरे बिजनेस मंदिर मध्य बिजनेस चली काप्ता व्यवसाय चली मुद्रा व्यवसाय चली एणु प्रभु कौन कले समस्त को से बाहर करदेले आउ कहले लेखा अछि आमर गृह प्रार्थनार गृह बोली ख्यात हेब किंतु तुमाने ताहाकु दस मानकर घर करियछ मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने सेई दिन ठारू आरंभ हो गला जीशुंग उपरे अत्याचार परीक्षा आरंभ हो गला परीक्षा आरंभ हो गला आउ लोक माने शास्त्री फारुसी माने आउ पुनरुत्थान नास्ती करुथिबा आउ माने व्यक्ति माने समाने आसी आउ समाने कौन कले जीशु को विभिन्न समय विभिन्न प्रश्न पचारि थिले तापरे माने देखुछु जे शेष रात्रि रे जीशु को जेतबेले शत्रु माने धरिले सैनिक माने धरिले आउ तांगु नहीं गले पिलात राजांग निकट को नहीं गले आउ पिलात विचार कले कौन से दोष पाई पारिले नाही तापरे हेरोद राजांग पाकु से पठेले हेरोद मध्य विचार कले वाक्य रे लिखा जाए जे हेरोद एवं पिलात एमानक मध्यरे परस्पर शत्रु थिले किंतु जीशुंकर विचारे एमाने कौन हेले परस्पर मिलित हेले परस्पर से माने मिलित हेले समानक मध्यरे शत्रुता थिला आउ जीशु ख्रीष्टंकर आगमनर उद्देश्य तांकर प्रायश्चित कार्य करिबार उद्देश्य शत्रुता को मिलित करिबा पाए किंतु ए व्यक्ति माने जानी पारिले नाही तेबे आमे देखुछु महाजाजक कयाफा महाजाजक हानन एमाने जाजक श्रेणीर लोक माने मध्य जीशुंकर विचार कले अर्थात मु एठे कहबी विचार कले माने जीशुंकर परीक्षा कले जीशुंकर परीक्षा कले से माने विचार करि पाले नाही तेबे जाजक माने गोटे बलिदान करुथिबा मेषकु जो भली भाबरे जाजक माने परीक्षा करुथिले जीशु जे बलिदान हेबा पई जाउछंदी से जे आउ जगतर पाप भार बही नहीं जिबा मेष शावक सेथि पई जाजक माने तांकर परीक्षा कले ताठारे कोनोसी भूल अछि कि नाही भूल नथिले भी से माने भूल अछि बोली कहिले तेबे आमे देखुछु पिलात हेरोद राजा माने जाजक माने पुनर्बार पिलातंग पाखकु पठेले पिलात हेरोद राजांग पाखकु पठेले हेरोद राजा पुनर्बार पिलातंग पाखकु पठौछंदी आउ सेतबेले पिलातंगर स्त्री से स्वप्न रे गोटे स्वप्न देखिछंदी आउ से पिलातंग निकट को आसी कहउछंदी से धार्मिक व्यक्ति विषय आपण हाथ दियंतु नाही से धार्मिक व्यक्ति विषय आपण हाथ दियंतु नाही पिलातंगर स्त्री जानी पेला से जने धार्मिक व्यक्ति पवित्र व्यक्ति आपण हाथ दियंतु नाही पिलात मध्य विचार कले आउ से कहले मु ए व्यक्ति ठारे कौनसी मृत्यु दंडर दोष मु पाई पारु नाही पिलात कौन कले सर्टिफिकेट देले तार अंतराल मध्यरे से कौन हेबे बलिदान हेबे ए मेष शावकंकर शरीर मध्यरे कौनसी दाग नाही कौनसी पाप नाही कौनसी कलंक नाही एणु एहा परीक्षा करिबार आवश्यकता थिला कारण जाजक माने कौन करुथिले परीक्षा करुथिले गोटे मेष को बलिदान करबा पूर्वरु परीक्षा करुथिले जे ता शरीर रे कोनोसी दाग अछि कि नाही तेबे आ माने देखुछु जीसु को आउ पिलात सर्टिफिकेट देले जे ता शरीर रे कोनोसी दाग नाही कोनोसी भूल नाही कोनोसी पाप नाही एणु जीसु ख्रीष्ट जेतेबेले जन्म ग्रहण कले मरियम जेतेबेले जन्म देले वाक्य रे लिखा जाए से आपना प्रथम जात संतान प्रसव करी लुगारे गुड़ाई गुहाल कुंडरे सुआइले कारण बसा घरे तांको पाई स्थान नथिला लुगारे गुड़ाइबा होचे आ मृत्युर चिन्ह इस्राएल लोक माने जने मरी गले ताकू लुगारे गुड़ेई की आउ समाने कौन करंती कबर दियंती एणु दूत से दिन मेषपालक मान कहले एहा तुम्भ मान निमंते चिन्ह स्वरूप हेब
तुम जो गुहाड़ जो मेष मान को नहीं कि चोरेवा बाहर को आसीअछ से गुहाड़ घरे आ उद्धार करता जन्म ग्रहण करिसंदी। आज दाऊदंग नगर तुमान निमंते त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करिअछंदी से ख्रीष्ट प्रभु यह तुम्ह मान निमंते चिन्ह स्वरूप हेब। से चिन्ह कौन ना जन्मरु ही से मृत्युर चिन्ह नहीं कि आसीथिले। एणु मरियम लुगारे कपड़ारे गुड़े की तांगु कौन करिसंदी सुआइसंदी। तेबे कुंड कुंड होची कबरर निदर्शन। तेबे कुंड कथा अनेक मु गत थर भी बड़ दिन आगे भी कहूली बोधे आ कुंड रे कौन थाए खाद्य थाए। एणु जीशु कहले मु जीवन दायक आहार। हुए तो अनेक समय प्रश्न आसी पारे कुंड रे पशु मानकर खाद्य थाए जीशु कौन पशु मानकर खाद्य। हाँ बाइबल रे लिखा जाए असार मनुष्य बुद्धि विहीन वन्य गर्धव शावक तुल्य मनुष्य जात अटे। तेबे जो माने कि पशु भली जीवन काटंती एपरी लोक मान उद्धार करबा पाए से मानकर आत्मिक जीवन खाद्य हेबा पाए प्रभु जीशु ख्रीष्ट स्वर्गरु अवतरण करिथिले। तेबे आमने देखुछु बाइबल रे लिखा जाए आदि पुस्तक तार 3 अध्याय 15 रे आ परमेश्वर सर्प को कहले नारीर वंशरु जने जन्म ग्रहण करिवे से तोर मस्तक को कौन करिब चूर्ण करिब। नारीर वंशरु आ अल्प दिन तले को गोटे डिवाइस रे माने लक्ष्मीपुर डिवाइस रे आ माने अनेक आ माने चिंता करूथिलु आ जने डाक्तराणी माँ से कहूथिले नारीर वंशरु पुरुष वंशरु नुहे। वंशावली रे ज्येष्ठ पुत्र मानकर नाम स्थान पाए किंतु नारीर वंश मरियम रो गर्भरु प्रभु जीशु ख्रीष्ट जन्म ग्रहण कले। से विषय आ मु कहबिनी अनेक प्रभुंगर दास माने अछंदी नारीर वंशरु। तेबे नारीर वंशरु जे जन्म ग्रहण करिवे से शयतानर मस्तक को चूर्ण करिव। तेबे वंश मध्यरु प्रभु दाऊद वंश को प्रभु मनोनीत कले। जिहुदा वंश को मनोनीत कले दाऊद वंश को मनोनीत कले। जेतबेले आमे टिके जिबा आउ दाऊद एवं गलियाद युद्ध विषय आमे टिके चिंता करिबा केमिति परमेश्वरंकर योजना आउ शयतानर मस्तक को से चूर्ण कले से विषय टिके आलोचना करिबा। आज आउ ता उपरे कहि कि मु क्रूस विषय आउ हारामाथियो जोसेफ विषय कहि कि मु शेष करिबि। तेबे जेतबेले इस्राएल एवं पलेस्टिया लोक माने से माने युद्ध करुथिले आउ सेतबेले पलेस्टिया गलियाद से सबु बेले आसी गोटे उपत्यकार ठियाई आउ से कौन करुथिला आउ से निज को देखौथिला कारण से 7.5 हाथ उच्चर थिला। सबु बेले कहूथिला तुम मध्यरु जन को मते दियो मु ताकु बद्ध करिबि बा तुम मध्यरु जने व्यक्ति मो निकट को आसु से मते बद्ध करू तेबे आमे तुमरो दास हेबु। पलेस्टिया एवं इस्राएल लोक मान मध्य युद्ध चली परमेश्वरंकर प्लान परमेश्वरंकर योजना को आम विषय ए स्थान रे आम देखा पारिबा। तेबे दाऊद से जेतबेले भाई मानकर कुशल वार्ता पछारिबा पई गले से सुनिले जे इस्राएल रो सैन्य श्रेणी की से कौन करुछि तुच्छ करुछि। तेबे दाऊद मने मने भाविले ए किए ए गोटे कुकुर भली माने मु जीवी कौन करी ता सहित युद्ध करी कारण ये सगल बंदी स्थान रे रही ए कथबार्ता करथिले जे ताकू मारिबो ता प्रति कौन करा जीवो। हेतबेले लोक माने कहले जे ताकू बद्ध करिबो राजा तांगर कन्या को विवाह देबे। तेबे दाऊद कहले मु जीवी आउ ताकू कौन करी बद्ध करी आउ से कहले मु परमेश्वरंको नाम रे जीवी आउ ताकू कौन करी बद्ध करी आउ आज ता शरीर रु तार मस्तक को अलगा करी ए किए जे इस्राएल सैन्य श्रेणी की ए तुच्छ करिब। तेबे जेतबेले दाऊद नदी रु 5टी चिकण पत्थर बाहर कले आउ से गलियात सहित युद्ध करबा पई गले। आउ जेतबेले गलियात सहित युद्ध करबा पई गले गलियात देखिला देखबा पई बहुत डेंगा उच्च आउ से कौन कले आउ दाऊद सहित युद्ध करबा पई से माने मुकाबिला होछंदी। हेतबेले गलियात परिहास कला तू गोटे कौन कुकुर
जे तू गोटे जस्टी नहीं मते मारिबा पई आसीचु एतबेले दाऊद कहले मु परमेश्वरंकर नाम रे तो निकट को आसु अछि आउ आज तो तते मु मारिबी तते बद्ध करिबी आउ तोर मस्तक को तो ठारू अलगा करिबी मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने टिके माने ए वाक्य विषय माने समस्त भल भाव जानो आउ माने दाऊद कौन कले जेतेबेले दुई जन से माने सम्मुखा सम्मुखी होउछंदी आउ सेतेबेले दाऊद मुणीरु गोटिए पत्थर बाहर कले तांगर छाटुणी रे रखिले आउ बुलेइले ठीक मारले गलियाद र कपाल रे जाई कि पत्थर पड़िला जेतेबेले कपाल रे पड़े बाजे सेतेबेले लोक माने केमती पड़ंती पश्चात पड़ी जानती किंतु गलियाद मुह माड़ी कि से कौन कले पड़िले दाऊदंग सम्मुखरे झुंकी कि से पड़िले मुह माड़ी पड़िले आउ दाऊद गले ता शरीर उपरे ठिया हेले आउ तार ता खड्गरे का खड्गरे ये कहबे कि अनम्यूट करी गलियातर गलियादर खड्गरे गलियादर खड्ग को बाहर कले गलियादर मस्तक को काटिले आउ बा हाथ रे मस्तक को धरिले डाहाण हाथ रे खड्ग धरी जेरुसलाम को आसिले आउ सेतबेले साउल राजा देखुछंदी से अब्नर को पचारुछंदी कौन अब्नर पचार ए भेंडियाटी कहार पुओ हेतबेले अब्नर कहिला महाराज आपण जीवित थिबा प्रमाणे मु कहि परिबि नाही दाऊद दाऊद से आगरु साउल राजांग पाखरे भी थिले आमने वाक्य जेतबेले देखु साउल माने साउलंग राजांकर अस्त्रवाहक दाऊद थिले साउलंकर सैन्य श्रेणी रे मध्य दाऊद थिले किंतु साउल चिनी पारले नाही तांकर रूप को से समय चेहरा को से जानी पारले नाही आउ साउल राजा पचारुछंती पचार ए भेंडियाटी कहार पुओ तेबे जा हो आउ दाऊद कौन कले से मस्तक को नहीं जेरुसलाम को आसिले आउ जेरुसलाम को आसिले आउ से खड्ग अति जत्न रे से खड्ग को रखा गला गलियाद र खड्ग को अति जत्न रे रखा गला कोठे रखा गला ना नव पर्वत रे हैं आमे टिके देखिबा नदो पर्वत रे प्रथम सामुएल जदि आमाने देखिबा आउ ताउची चित पर्वत उपरे जाजक मानकर उच्च स्थली चित पर्वत उपरे जाजक मानकर उच्च स्थली आमे जानू सामुएल जेतबेले साउल गध खोजिबा पई गले लोक माने कहिले से उच्च स्थली की जाइछंती पर्वत ऊपर को जाइछंती जाजक माने सेतबेले चित पर्वत उपरे चित पर्वत पवित्र पर्वत से पर्वत उपरे जाजक माने कौन करुथिले आराधना करुथिले तंबू पकई के आराधना करुथिले एनु दाऊद गलियाद र खड्ग जेतबेले नेई कि जेरुसलाम को गले से खड्ग को मध्य अति जत्न रे रखा जाइछि कोठी रखा जाइछि ना नदो पर्वत उपरे जाजक मानकर तंबू मध्य रे गोटे लुगारे गुड़ा गुड़ा हेकी रखा जाइछि जदि आमे कहिबा सेटा तो गोटे अपवित्र गलियादर खड्ग से खड्ग को जाजक माने केमिति अति जत्न रे रखिले दिने जेतळे दाऊद आउ से जाउछंदी से नदो पर्वत को आउ सेतबेले वाक्य रे आमे देखुछु से अही मेलक जाजक पाकु गले आउ कहिले रोटी मागिले आउ सेतबेले जाजक कहिले मो पाखरे आ अलगा रोटी नाही दर्शनी रोटी अछि हेतबेले दाऊद कहले माने जाजक कहले कौन तुमर जुबा माने कौन पवित्र सेतबेले दाऊद कहले 3 दिन हेलानी ए माने घरु बाहरलेनी समानकर पात्र आहुरी पवित्र थिबो तेबे से कौन कहले दर्शनी रोटी देले तापरे दाऊद कहले एठारे किछि खड्ग अछि कि कारण शत्रु माने अछंती सेतबेले जाजक कहले तुमे गलियात को जो खड्गरे बध करिथिल देख तंबुरे गोटे लुगारे गुड़ाई की रखाई
ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ ସେ ଖଡଗ ପାଇଲେ, କହିଲେ ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଖଡଗ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। କାରଣ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, जो पर्यंत गलियाद्र हातरे से खड्ग थिला सेटा ता पाई शक्तियुक्त थिला, किंतु किछि करि पारलानी। किंतु जेतेबेले से खड्ग दाऊदंक हाथ को आसिला, दाऊदंक पाई शक्तियुक्त हे गला, दाऊदंक पाई शक्तियुक्त हे गला। एणु से खड्ग को दाऊद ताकु से पवित्र भावरे जाजक मानकर तंबुरे से रखिले। तेबे से मस्तक को, जो मस्तक नहीं थिले से मस्तक को से कोठी रखिले, कोठी कबर देले, के कहिबे कि से मस्तक को कोठी कबर दिया गला। बाइबल ले लेखा हिची, हुए तो गुप्तरे अछि। इस्राएल मानकर इतिहास कहे कौन ना गोलगथा, आमे कहू कालबरी पहाड़। कालबरी कौन क्या कहा जाए? आउ माने जिहुदी मानकर भाषा रे कपाल को कालबरी कहा जाए। ओडिया बाइबल रे अनेक प्रभुंकर दास माने अछंदी, कालबरी शब्द उल्लेख करा जाइनी, लेखाई गोलगथा अर्थात कपाल स्थल को नाम बोली लेखाई, कपाल स्थल को नाम। आउ अनेक समय आमे कहू बा प्रभुंकर दास माने कहती मुंड खपुरी स्थान। मु जेतबेले छोट थिली गोटे कैलेंडर देखी थिली, से कैलेंडर पाखरे क्रूसरे जीशुंकर आउ चढ़ा जाइथिबा चित्र, ता तळे मुंड खपुरी माने पड़ी रहिबा गोटे चित्र बहुत वर्ष तळे मु देखिछि। हुए तो कहा घरे रहिथिबो कि मु कहि पारुनी। आउ ताउची मुंड खपुरी स्थान। तेबे जिहुदी मानकर इतिहास कहे दाऊद जेतबेले गलियाद्र मुंड को आनिले, आउ सेई स्थान रे जेरूशलेम रे तांगु कौन करा गला? कबर दिया गला। से मुंड को कबर दिया गला। एणु सेई स्थान होची गोलगथा। जिहुदे माने कहती कालबरी। इंग्लिश बाइबल रे मध्य मु देखुथिली अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल रे जे रेफरेंस रे दिया जाइछि कालबरी, कालबरी शब्द उल्लेख करा जायनि। आउ कोनोसी बाइबल रे थिबो, किंतु अमेरिकन आउ स्टैंडर्ड बाइबल रे मु देखुथिली कालबरी केवल रेफरेंस रे दिया जाइछि। एणु कालबरी हला कपाल को कहा जाए। ताउची आ कपाल स्थल को नाम, अर्थात सेटे का को कबर दिया जाइथिला? गलियाद को कबर, गलियादर मस्तक को कबर दिया जाइथिला। एणु जीसु को जेतबेले क्रूस चढ़ेइबा पाई आउ क्रूस रे चढ़ेइबा पाई नेउछंदी, जेतबेले नेउछंदी गोटे उच्च पर्वत को नहीं नांदी, आ गोटे उद्यान को नहीं छंदी, गोटे उद्यान को नहीं छंदी। जो स्थान रे जीसु को क्रूस रे चढ़ाई दिया गला सेठारे गोटे उद्यान थिला बोली लेखा अछि। आउ सेई उद्यान पाखरे आउ पर्वत रे कोन करा जाइथिला? कबर खोला जाइथिला। हेले जीसु को गोलगथा नामक स्थान को क्रूस रे चढ़ाइबा पाई निया गला। हेले जीसुंकर क्रूस को के बनैथिले? जीसुंकर क्रूस को के बनैथिले? पीटर भाई, पीटर भाई हाँ सर, हाँ कौन लेट होची की? लेट होची की? लेट है लगी परवा नहीं आज्ञा कहतु। हौ टिके समस्ते म्यूट करी असुविधा बसचंती तो मु जानी पारनी। असुविधा बहुत किसी नहीं। बहुत आज्ञा बहुत बढ़िया लगुची। गोटे कौन लेट सर? हेले मध्ये आमे ताकु समर्थन करतो। प्लीज कहंतु आज्ञा, बहुत बढ़िया लगुची। बहुत गभीर तत्व कहउछन आज्ञा, थैंक यू, नुआ नुआ थैंक यू। विषय। हेले जीसुंकर क्रूस को के बनैथिले? जो क्रूस को हम माने पवित्र बोली कहउछु, के बनैथिले? टिके म्यूट करी कहंतु।
ଯାଜକ ମାନେ ମିଶିକି ରୋମିଓ ସୈନିକ ମାନେ ମିଶିକି ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶକୁ ବନେଇଥିଲେ। ରୋମିଓ ସୈନିକ ମାନେ ଯାଜକ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ କେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶକୁ ରୋମିଓ ସୈନିକ ମାନେ ବନେଇଥିଲେ। ବାଇବଲ କହେ ଯେ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଏ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ। ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆମର ଅସ୍ତ୍ର ହଉଛି କ୍ରୁଶ, ଅଭିଶପ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ହଉଛି କ୍ରୁଶ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢେଇବା ଆଉ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଯିବେ, ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କଲେ, କ୍ରୁଶରେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚଢେଇଲେ। ତେବେ କ୍ରୁଶ ବହନ କରିକି ଗଲେ ଯୀଶୁ କୋଠିକି, ଗଲଗଥା ନାମକ କପାଳସ୍ଥଳ ନାମକୁ ସେ ଗଲେ, ଯୋଉଠି ଗଲିଆଦର ମସ୍ତକକୁ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାଗଲା, ବା ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶକୁ ଚଢାଗଲା। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶକୁ ଚଢାଗଲା। ଧରନ୍ତୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଖପୁରୀ ସ୍ଥାନକୁ କବର ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଳାଗଲା, ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶକୁ ସେଇଠି ପୋତାଗଲା। ସେ ମୁଣ୍ଡ ଖପୁରୀ କଣ ହେଇଥିବ? ରବର୍ଟସ ଭାଇ, ଯାକ ଭାଇ, କଣ ହେଇଥିବ ସେ ଖପୁରୀ? ସେ ଖପୁରୀ ପୁରା ଦି ଫାଳ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡ ହେଇଥିବ, ଖଣ୍ଡ ନାଇଁ? ହେଇଯାଇଥିବ। ପୁରା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଥିବ। ଏତେ ବଡ କ୍ରୁଶ, ମୋଟେ ତିଆରି ସେ ମସ୍ତକକୁ କଣ କରାଗଲା? ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରାଗଲା। କାହାର ଅସ୍ତ୍ରରେ? କାହାର ଅସ୍ତ୍ରରେ ଶୟତାନର ମସ୍ତକକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରାଗଲା? ଶୟତାନର ଅସ୍ତ୍ରରେ। ରୋମିଓ ମାନେ ଯୋଉ ସୈନିକ ମାନେ ଯୋଉ କ୍ରୁଶ ବନେଇଥିଲେ, ସେ ଭାବିଲେ ଏ ଅସ୍ତ୍ର ଆମର ଅସ୍ତ୍ର, ଏଇ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିବା। କିନ୍ତୁ ନା, ଯୀଶୁ କଣ କଲେ? ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଶୟତାନର ମସ୍ତକକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏଣୁ ଦାଉଦ ଯେମିତି ଗଲିଆଦର ଅସ୍ତ୍ରରେ ଗଲିଆଦର ମସ୍ତକକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ତଦ୍ରୂପ ପଲେଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ମାନେ ରୋମିଓ ସୈନିକ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରରେ ବା ଯାଜକ ମାନଙ୍କର ମିଳିତ ଷଡଯନ୍ତ୍ରର ଅସ୍ତ୍ରରେ ଶୟତାନର ଅସ୍ତ୍ର ମାନେ ମସ୍ତକକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଏଣୁ କଲସି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଶୟତାନର ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରକୁ ଛଡେଇ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରକାଶରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘେନି ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି। ଶୟତାନର ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଛଡେଇ। ହଁ, ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସେ କ୍ରୁଶରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେ ଅଭିଶପ୍ତ କ୍ରୁଶ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୁଶ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲାଗିଲା, ସେ କ୍ରୁଶ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ସେ କ୍ରୁଶ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ଏଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଚୋର ପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି, ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶର କଥା ମୂର୍ଖତା। କାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଥିଲି ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଚୋର, ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଚୋର ବୋଲି ଲେଖାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୋର ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି। ଆମେ ବି କହିବା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଚୋର ବୋଲି କହିବା। ଏଣୁ ତା ପାଇଁ କ୍ରୁଶ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପବିତ୍ର କ୍ରୁଶ ମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ କ୍ରୁଶରେ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର ସେ କ୍ରୁଶରେ ଲାଗିଲା, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ହେଇଗଲା। ଏଣୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୁଶ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଏଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା, ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରରେ ଶୟତାନର ମସ୍ତକକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କଲେ? ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଏଣୁ ଶୟତାନର ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଛଡେଇ ବୋଲିକି ଲେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ନିଜର ହାତ ବାଜିଲା, ନିଜର ଶରୀର ବାଜିଲା କ୍ରୁଶ, ସେ କ୍ରୁଶ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ହେଇଗଲା। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କପାଳ ସ୍ଥଳକ ନାମ, ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ମାନେ
ମାନେ ଗଲିଆଦର ମସ୍ତକକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ। ଗଲିଆଦକୁ ଶୟତାନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ, କାରଣ 3ଟି ଛଅ ତାଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେ 6.5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଯୋଉ ସାଞ୍ଜୁଆ ସେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ବା ବର୍ଷା ଯୋଉ ଧରୁଥିଲେ 600 ସେକଲ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘରେ ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଯୋଉଟା କି ବଂଶାବଳୀରେ ଲେଖାଯାଏ 20 ଅଧ୍ୟାୟରେ 6 ଅଙ୍ଗୁଳି ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ପରିବାର ଶୟତାନର ପରିବାର କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଗଲା ଗଲଗଥା ପାହାଡରେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡରେ ଚଢାଗଲା, ତାହା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କୋଉଠି ନା ଉଦ୍ୟାନରେ ଚଢାଗଲା। ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଚଢାଗଲା। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟାନ ଥିଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ହାରାମାଥିଓ ଯୋସେଫ ଆଉ ସେ ଉଦ୍ୟାନରେ ନିଜ ପାଇଁ କଣ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ କବର ଖୋଳିଥିଲେ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଏହା ହଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ଯୋଉ ଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ବଳିଦାନ କରିବେ, ସେଇ ଦିନ ଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ଦିନ ହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନିମନ୍ତେ ବଳି ହେଲେ। ଏଣୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଶାବକ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଳିକୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କେହି କବର ଦେଲେନି, କେବଳ ହାରାମାଥିଓ ଯୋସେଫ ଏବଂ ନିକୋଦିମ କବର ଦେଲେ। ତେବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ପଢିବା, ତାପରେ ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ସେଇ ଆଉ 27:56-57 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ମାଥିଓ 27:57। କିଏ ପାଇନାହାନ୍ତି? এইଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେତିକି ଥାଉ। ବେଳ ଗଡି ଆସନ୍ତେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ହାରାମାଥିଓ ଯୋସେଫ ଦେଖିଲେ ସେ ଗୁପ୍ତ ହେଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ହାରାମାଥିଓ ଯୋସେଫ, ନିକୋଦିମ ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ଗୁପ୍ତରେ ଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ କେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କବର ଦେଲେନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖାଯାଏ, ବେଳ ଗଡି ଆସନ୍ତେ। ସମୟ ଚାଲି ଯାଉଛି, ରାତି ସମୟ ଆସିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିବ। ତେବେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମର ପାପ ପାଇଁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ମରିଛନ୍ତି। ହାରାମାଥିଓ ଯୋସେଫ, ନିକୋଦିମ ଭାବିଲେ ମୋର ପାପ ପାଇଁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ମରିଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ, ରାତି ଆସିଯିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀରକୁ କ୍ରୁଶରୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏଣୁ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭୟ ନ କରି ପିଲାତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର ମାଗିଲେ। ଧନ୍ୟ ହାରାମାଥିଓ ଯୋସେଫ, ସେ ଜାଣିପାରିଲା ମୋ ପାପ ପାଇଁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ମତେ ହିଁ କ୍ରୁଶରୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡିବ, ମତେ ହିଁ କ୍ରୁଶରୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ଆଜି ବି ସେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁଲ କାମ କରୁ, ସେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ରାତି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ, ବେଳ ଗଡି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବହୁତ ସମୟ କହିଦେଇଛି, କ୍ଷମା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସମୟ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ବୋର ଲାଗିନି। ଅତି ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ, ନିଗୁଡ ତଥ୍ୟ ଗୁଡାକ ଆପଣ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କାରଣ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏଗୁଡାକ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ ମୋର ତ ଅଧିକାର ନାହିଁ, କି ସେଇ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଆଉ କଣ ବୋଲି କହିବି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି, ଆଉ ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ,
ଆଉ ମୋ ପରି ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ଆଜି ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ପିଟର ଭାଇଙ୍କୁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, କାରଣ ଏଇ ପୁଣ୍ୟ ସପ୍ତାହରେ ମତେ ସେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଉପାସନାର ଆରମ୍ଭରୁ ଏଯାବତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟରେ ସିଏ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଅଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣଡେରି ରହିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଶୈତାନ ମହା ଚାଲାକ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଘାତ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ପରାଜିତ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ଆଉ ମନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଏତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଇଛି। ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।